گھر نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہیں، حالات بھی نہیں ہیں، اللہ غیب سے اس کو گھر دے دیتا ہے۔ وہ سب کہنے لگے کہ میں نے یہ نیت کی کہ اللہ مجھے گھر دے، میں اس میں ایک جگہ چھوٹی سی 2-3 جائے نمازوں کی 4 جائے نمازوں کی اس کو میں مختص کر دوں گا، مخصوص کر دوں گا کہ میں نے یہاں مصلی بنانا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ نیت کر لی، اس نیت پہ رب کا نظام دیکھیں، اس نیت پہ رب کا نظام دیکھیں۔ کہا کہ مجھے گھر مل گیا۔ پھر ایک عجیب بات اور کہی، یہ کہا کہ میں نے آپ سے درس میں سنا تھا کہ یا اللہ مجھے گھر دے، میں مہمانوں کی نیت کرتا ہوں، مجھے گھر دے، مہمانوں کی نیت کرتا ہوں۔ کہا میں نے مہمان کی نیت کر لی، اللہ مجھے گھر دے، اور میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، مہمان کی نیت کرتے دعا کرتے رہا، کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اور اللہ پاک نے پھر ایک اور گھر دے دیا۔ فرمایا کہ ہر گھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مگر وہ گھر، وہ تعمیر جو مہمان کی نیت سے ہو۔ ایک اللہ والے کا خادم جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو عرض کیا حضرت گھر کا سامان لینے جا رہا ہوں۔ میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ گھر میں ضرورت ہے۔ فرمایا گھر کی نیت نہ کر، مہمان کی نیت کر لے۔ یہ جو مہمان کی نیت کر لے گا پھر گھر والے بھی کھائیں گے، اور اگر کوئی مہمان آ گیا تو وہ بھی کھا لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی پکڑ اور پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور نے ایک بات بتائی، میں یہ چھوٹے چھوٹے عطا کے بہانے بتا رہا ہوں، اس کریم کے، اس کے دینے کے بہانے ہیں کہ بندہ ایسے تھوڑی سی نیت کر لے، تھوڑا سا خیال کر لے، تھوڑا سا گمان کر لے، تھوڑی سی نیت کر لے۔ اب ایک اور سن لیں، کہا کہ میں نے وضو کی دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس یہ دعا پڑھ لی، اور اس دعا کو پڑھتا رہا، اللہ پاک نے غیب کے خزانے سے مجھے وسیع گھر عطا فرمایا۔ اس شہنشاہ کے دینے کے بہانے ہیں، جب وہ دینے پہ تیار ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اس کریم کی رحمت کو متوجہ کریں، اس کریم کے فضل کو متوجہ کریں، اور اس کے کرم کو متوجہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اگر آپ اس کو بہت فائدہ لینا چاہتے ہیں، کورے برتن میں، کورے مٹکے چھوٹے چھوٹے، آج کل وہ غالباً پتہ نہیں یہ شیخو پورہ سے آتے ہیں، اس میں گلاب جامن رسگلے آتے ہیں، وہ کس جگہ سے آتے ہیں؟ شرکپور سے۔ وہ مٹکے کورے لے لیں، وہ استعمال کیا ہوا نہ لیجیے گا، اس میں اس کی تاثیر ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں جاتی۔ کورا لے کے اگر اس میں استعمال کریں اور نبیذ کا استعمال کریں، یہ مشروب آپ نے سنا ہوگا لیکن عمومی سننے میں بھی نہیں ہے، ایسا زبردست مشروب ہے کھجور کا، نبیذ کا استعمال، کھجور کا استعمال نبیذ کی شکل میں بہت کمال چیز ہے، بلکہ عرب میں اس کو باقاعدہ مہمانوں میں اس کی تواضع کی جاتی ہے، اور اس کو جی بھر کے پیا جاتا ہے، کھانے سے پہلے پیا جاتا ہے، کھانے کے درمیان پیا جاتا ہے، بعد میں نہیں۔ یہ بہت کمال چیز ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک اور چیز ہے جو طب نبوی میں ہے اور ہماری سائنس اس پہ بہت تیزی سے ٹوٹ پڑی ہے، وہ ہے کہ پاؤں کو کوئی ایسا جوتا دیں جو نیچے سے چبھے، ہلکا ہلکا۔ آپ نے دیکھا نا پلاسٹک کے جوتے آ رہے ہیں جو نیچے سے نوکے ہیں، ہلکی ہلکی۔ وہ بنیادی طور پہ میرے حضور ننگے پاؤں چلے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، ننگے پاؤں چلنا کبھی کبھار، یہ میرے آقا کی سنت ہے اور یہ طب نبوی ہے، اور یہ سائنس کی دنیا اس پہ لوٹ اور پوٹ رہی ہے کہ ننگے پاؤں زندگی کا حصہ بہت ضروری ہے۔ ننگے پاؤں چلا کریں۔ یہ بعض لوگ میں نے دیکھا گھاس پہ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی بڑھا رہے ہوتے ہیں، گھاس کی ہلکی ہلکی چبھن انہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اوس میں چل رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ننگے پاؤں چلا کریں، اپنے جسم کو اتنا نازک اور پاؤں کو اتنا نازک نہ بنائیں کہ ہمیں قالین کی ہلکی سی سختی بھی ہمارے جسم کو تکلیف دے۔ ننگے پاؤں چلا کریں۔ اچھا، اب آج کل ایک اور دنیا میں ایک چیز دیکھی ہوگی، میں ہلکے ہلکے اشارے کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں۔ ایک پاؤں بنا ہوا ہوتا ہے اور پاؤں میں پوائنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں پوائنٹ ہیں، یہ پوائنٹ دبائیں گے دماغ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل۔ ایک
पाँव बना हुआ होता है, अभी भी आप साइंस पे खोलेंगे तो आप पाँव मिलेगा। अच्छा, ये सारे पॉइंट एक एक दबाने से जिंदगी का वो हिस्सा ठीक होगा। जब बंदा नंगे पाँव चलता है, सारे पॉइंट एक ही वक्त में दब जाते हैं। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए, इसे आंख में डालें। जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं तो ये 3000 गुना बन जाते हैं, और जब 3000 गुना बन जाती है, एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है। चंद रुपए पे नजर को तेज करें, जल्द को खूबसूरत बनाएं। आए आपको एक ऐसा राज बताऊं जिसका ताल्लुक जन्नत, कुरान, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, आपकी रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत वाकईतन बेहतरीन जा रही है। मैं रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत के लिए हमेशा कुछ तजवीज़ें, कुछ टोटके, कुछ टिप्स, कुछ राहें, कुछ रास्ते और बहुत आजमोता तजर्बात तलाश करता रहता हूँ। आज एक तोहफा तलाश करके लाया हूँ, और वो तलाश ये है कि सदियों से आजमोता तलाश है। ये मेरा अपना आजमूदा नहीं सिर्फ, बल्कि सदी दर सदी ये आजमूदा। ऐसे 3 अज्जा जो सदा जवानी और तंदुरुस्ती के राज को बाकी रखें, आपको हमेशा सेहतमंद रखें। ये जन्नती राज कुरानी तोहफा भी है, नबवी सौगात भी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके फायदे बताऊंगा। यकीनन इसके फवायद सुन के आप हैरान होंगे। दरअसल बाज चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मुख्तसर, मामूली, छोटी होती हैं, लेकिन इसकी ताकत और तासीर बहुत ज्यादा है। लोग इसको मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि यही वो चीज है जो इंसानियत की बका है, जिस्म के हर हिस्से को तंदुरुस्त और तवाना करती है, जिस्म के हर हिस्से को सेहत का उसूल, सेहत का राज और जिंदगी बख्शती है। वो 3 अज्जा क्या हैं? नंबर 1 अनार, नंबर 2 जैतून और नंबर 3 शहद। अनार, जैतून और शहद, इन तीनों का तस्करा कुरान में है, इन तीनों का तस्करा हदीस में है। ये तीनों जन्नत में होंगे। अनार जन्नत का फल, जैतून जन्नती नेमत और शहद जन्नत की नहर। और कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया कि अंगूर के बागात जैतून और अनार भी हमने पैदा किए, आपस में एक जैसे, और फल जायके जुदा जुदा। और फिर फरमाया कि इस शहद की मक्खियों में बहुत ज्यादा ऐसे पीने का शरबत निकलता है जिसके रंग जुदागाना है, और इसके लिए, इसमें लोगों के लिए शिफा है, फीह शिफा लिन्नास। अगर हम तीनों चीजों को मिला लें जो सदियों के तजर्बात से साबित है, सदियां इनके फवायद की गवाह हैं, और इसमें इलाज मुआवजे का एक बहुत बड़ा राज है। जिसने आजमाया, मुफीद पाया, सेहतमंद पाया, बाकमाल पाया। क्यों? जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं, हर जुज़ की ताकत आपस में मिल जाती है। फिर ये अज्जा एक एक हैं, लेकिन जब ताकत बनती है तो ये 3000 गुना बन जाती है, और जब 3000 गुना बन जाती है, एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है जो सेहत और तंदुरुस्ती और बकाए इंसानियत और फिटनेस के लिए राजों में से राज है। और तीनों अज्जा आपस में मिला लें, अनार का रस, जैतून का वो तेल जो बहुत खालिस, और शहद मिला लें, हम वजन मिला लें, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, या 1 कप, 1 कप, 1 कप, हम वजन मिला लें, खूब अच्छी तरह मिला के रखें। हम इसको पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 2 बार या 1 बार। अब इसके फायदे सुनते चले जाएं। इसको किसी ड्रॉपर में डाल लें, सोते वक्त 1 कतरा आंख में डालें। हल्की जलन जरूर होगी, लेकिन इस जलन का फायदा आप अगर सुनते जाएंगे और इसके फवायद के कमालात अगर आप पे खुलेंगे, तो फिर वो जलन इस मामले में कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आंख के अंदर कुछ ऐसा काला मोतिया या ऐसी बीमारी जिसका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन है। इसके लिए बेहतरीन तोहफा है। जिन रात को नजर नहीं आता या दिन को धुंधला नजर आता है, उनकी नजर खत्म हो गई है, उनके लिए निहायत मुफीद है। कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल या ऐसी तेज लहरें, शुआएं, वेल्डिंग की या किसी ऐसी ताबकारी जिससे आंखें कमजोर हो गई हैं, नजरें खत्म हो रही हैं, और आंखों में अगर सोते वक्त डालें। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए और इससे हिफाजत हो, इसे आंख में डालें। दूसरा फायदा, जिसके दिल के वाल्व बंद हो, दिल की बहुत बड़ी सर्जरी का मशवरा हो चुका हो, धड़कन बहुत तेज होती है, ब्लड प्रेशर कभी लो, कभी हाई, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे लोगों के लिए सेहतमंदी का ये टोटका, यानी दिल की बीमारियों के लिए तो कमाल चीज है। दिल की जो भी बीमारी हो,
तीसरा फायदा, अगर कोई ये चाहता है कि उसके जोड़, कमर, पट्टे, आसाब सलामत रहें, जिंदगी भर माजूरी और मजबूरी ना हो, हमेशा सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद निजाम उसके साथ रहे, लंबी उम्र पाने और लंबा सफर जिंदगी तय करना चाहते हैं लेकिन सेहतमंदी के साथ, वो ये टोटका 100% इस्तेमाल करें। अगर आप एक वक्त में 3 चम्मच शहद, 3 चम्मच जैतून, 3 चम्मच अनार का रस ले सकते हैं। अनार का रस अगर हल्का थोड़ा सा खट्टा भी हो तो हर्ज नहीं, नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। ये तीनों चीजें मिलाएं और फिर पिलाएं या पिएं। चौथा फायदा, जो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां, स्याह दाग, स्याही बढ़ रही, धब्बे मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, वो ये टोटका पीने में और लगाने में भी इस्तेमाल करें। हथेली पे डालकर चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, एक है लगाना, एक है मलना। मलते रहें कम से कम 10 या चंद मिनट, फिर डालें, फिर मलें। इस तरह चेहरे पर जो स्याह दाग हैं खत्म होंगे, शफाफ रहेगा, सेहतमंद रहेगा। इसको पीने में भी चेहरे की सेहतमंदी के राज खुलते हैं और इसको मलने में भी सेहतमंदी के राज दिखते हैं। ये जिस्म की अंदरूनी सेहत और बैरून सेहत का मुकम्मल और 100% इलाज है। और हकीकी जिंदगी अगर चाहते हैं तो इस टोटके के साथ दोस्ती करें। पांचवा फायदा, आप सेहतमंद हैं, आपको इन तकालीफ में से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वाकई सारी उम्र सेहतमंद रहें, सारी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाते रहे, फिर आप कभी ना भूलें, इसको हमेशा अपने पास रखें, यानी इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहें, नस्लों को इस्तेमाल करें। नस्लें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहेंगी, उनकी नजरें, उनके आसाब, वक्त से पहले बुढ़ापा, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, ताकतवर जिस्म होता है, फौलादी कुव्वतें मिलती हैं, बाकमाल जवानी होती है और इंशाअल्लाह चमकती दमकती जिंदगी का एक बेहतरीन राज मैं आपको दे चुका हूं। कुरानी राज है, नबवी राज है, सेहत का राज है, तंदुरुस्ती का राज है और है बिल्कुल सस्ता, कोई महंगा नहीं है। अगर आप दवाओं के मुकाबले में इसका मवाजना करें या ऐसी ग़िज़ाएं जो जाके सेहत को बर्बाद करती हैं उनसे मवाजना करें तो ये बहुत सस्ता और हर जगह मिलने वाला सेहतमंद और ताकतवर टोटका है। आए, आज के बाद इसको नहीं भूलेंगे, आज के बाद इसके सेहत के राज को इंशाअल्लाह पाएंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, सेहत का